Hi everyone, welcome to yet another episode of the Gargi Arya Show. And before I tell you about our today's guest, first I would like to tell you about the Gargi Arya Show. It is a show to help you live a life that you can be proud of and actually rise above your own expectations and imaginations. And today, to prove that, we have a very beautiful and inspiring guest with us. Her name is Miss Megha Ahuja. She is a council member of Uttar Pradesh Educational Council, ICS certified life coach, counseling psychologist, and you know what? The beauty and something which I admire about her is that she's on this amazing mission to empower millions of lives through her personalized guidance and transformative insights. She is also the one stop solution for every problem that you have, and she deals with the area in parenting and relationships. So thank you so much for being here on the show. We have personally met too, and I truly admire, and you are such an inspiration for all of us here. Thank you. My God, Gargi, I'm truly honored to receive an invitation. Your podcast and your role as the youngest life coach is so inspiring. And I truly appreciate the opportunity to share insights with you. And looking forward to our conversation. And thank you for this wonderful chance you have given me. Amazing. Thank you so much. So let's start. My first question to you is, what's your story? What was that point in your life where you actually had this moment ki now you want to share this wisdom of parenting with other parents also? Yeah. So, this is something like coming direct from my heart. मेरा सारा जीवन मेरी सुबह शाम मेरे बच्चों से है जिस नाम से मुझे सब जाने वो नाम इन बच्चों से है and before I start I just want to say to you this today's podcast is so special to me and I want to dedicate this podcast to my children Lakshya and Andra because they have given me the opportunity to be a mom, to be a proud mom, to be a happy mom. And when you say that uh, parenting journey. Like it's a big story full of feelings, emotions, guilt, challenges, and things to learn. And every step taught me something new, made me understand that being patient and talking well and emotional well being is so crucial in parenting. And I was fortunate enough to have support of my family, especially my in laws, my husband, and my mom. She stayed with me that time and I hired house help also because for me it's so important to like take care of myself, my health, my sleep, my diet, and to enjoy motherhood. I experienced like a new direction and sense of responsibility to my life. Sometimes it was tiring too, but when you see your child smile, everything else like fades away. Thank you for being on this amazing mission. जो आपने story share करी, we all could relate, and mostly the parents who are going to watch it, they can truly connect with you because the way you have shared and the way you started to have this responsibility ki now up to you have to share this wisdom with with the other parents also. So thank you for the work you do. And my next question to you is, when you started in your parenting journey, तो आपने भी कुछ challenges face किए होंगे. So how did you deal with each one of them? Yeah, this is something I would like to share because when I started being a parent now, the challenge was figuring out how to take care of myself because मेरा C-section delivery था, right? So to solve this, I started to take care of myself more. I asked my family members और लोग कितनी बार ना बहुत hesitate करते हैं लेडीज की फैमिली मेंबर्स से हेल्प नहीं लेते हैं उस टाइम पर एंड हेल्प इज समथिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ इट्स नॉट अ वीकनेस कि आप किसी को हेल्प के लिए बोल रहे हो बिकॉज किसी भी लेडी के लाइक लाइफ में ना यही एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है व्हेन शी नीड्स एवरीवन अराउंड हर मेंटली फिजिकली इमोशनली तो वो सपोर्ट लेना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सपोर्ट लेना है अपनी फैमिली से उसके लिए हेसिटेट नहीं करना है और इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर हाउस हेल्प ऑल्सो
और मैं थोड़ी सी ना लाइक आई एम अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन, तो आई प्लान एवरीथिंग इन डिटेल कि मैं हर चीज की प्लानिंग रखूं पहले से, मेरे पास लाइक सब कुछ लिस्ट डाउन हो, जॉट डाउन हो, क्या चीजें बाद में होनी तो सबका लिस्ट बना हो। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर काम करती हूँ, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की। और फिर ये सब कुछ करते करते समझ में आया कि लाइक ओनली अ हैप्पी मॉम कैन मेक अ चाइल्ड हैप्पी। आप कुछ भी कर लो, अगर आप खुद स्ट्रेस्ड आउट हो, आप सोए नहीं हो, आपने ठीक से खाया नहीं है, तो आप खुद इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हो, तो फिर हाउ यू कैन लाइक बी हैप्पी विद द किड? नो, इतना छोटा बच्चा आप वो सब कुछ फील कर सकता है, ये नहीं कि अभी हुआ है तो उसको कुछ पता नहीं है। तो दे आर सो सेंसिटिव, योर वाइफ्स कैन फील द मदर्स वाइफ। तो you have to be happy, और हैप्पी होने के लिए ना you have to make your surroundings comfortable and happy actually. Yes. Awesome. So, like आपने बिल्कुल सही बोला कि एक mother in the home, she is the queen of the whole house, because if she is not happy, anyone in the home catches her vibe, and it's like हर चीज उन्हीं से stem होके आती है, either sadness or happiness. So the woman of the house is literally like the queen, and if she is the mother, she is like ruling over the amazing kingdom of hers. So, like my next question to you is, since we are talking about parenting or especially on teenagers, so इस age group में क्या होता है, a lot of teenagers they don't actually understand कि वो bad influence में भी कभी कभी चले जाते हैं, bad peer group, and they are not surrounding themselves with the like-minded group. So how can parents actually guide them, because इस age group में teenagers को some of them are really aggressive. So how to deal with such kind of situations? Okay, so like dealing with how friends can influence teenagers can be tricky. And how I help my son, just by giving him some thinking skills and rational thinking, talk openly, उसको कोई इतना बड़ा रिएक्शन मत दो, कोई जजमेंट नहीं हो कि तुम्हारा ये फ्रेंड ऐसा है, उसकी फैमिली ऐसी है, stay away. मतलब let them experience their own judgment, of not judgment in the sense like to how they perceive other people, no, उनको अपने experiences खुद बनाने दो उनके बारे में. You just give them a safe space कि जहाँ पर वो आकर आपसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चीजें, और उनको ना एक क्लैरिटी दो चॉइसेस को लेकर कि अगर आप ये चॉइस बना रहे हो, अपनी फ्रेंड सर्कल ऐसा बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोस कॉन्स हैं. हालांकि बच्चे बोलते हैं कि हम फ्रेंडशिप में ये देख के थोड़ी चेक करते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बिकॉज दिस इज अ लिटरल स्टेटमेंट कमिंग आउट माय सन. तो मैंने बोला ठीक है, हम उसकी फैमिली को, बैकग्राउंड को चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो अपनी रिक्वायरमेंट तो पता है कि व्हाट यू वांट एक्चुअली फ्रॉम योर फ्रेंड. तो इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हिच यू वांट एज अ फ्रेंड, तो तुम फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हो. नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू एज अ किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, and you should have your clear why you are choosing that particular person to be your friend, and you should really proud of them actually. Awesome. So इसका मतलब यही है कि parents should give the child the freedom to choose their own, like to make their own choices, ताकि वो खुद ही experience करे, क्योंकि जब तक वो खुद experience नहीं करेगा and they are always guided, so they will not actually have the hands-on experience. So thank you for sharing that point. My next question to you is, इस एज ग्रुप में पेरेंट्स और टीनेजर्स, one more thing, Gargi, one more thing I want to add here, that assertiveness is the key to handle the peer influence. I mean, once you have like made your boundaries very clear, no, so आपको यहीं से एक फिल्टर भी लग जाता है अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि जो लोग आपकी बाउंड्रीज को समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ही आपके रियल फ्रेंड्स हैं. कितनी बार बच्चे आपस में बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता है, तू तो डरता है, डरपोक है, ऐसा है, तेरे बस की नहीं है, ये सब डायलॉग्स आते हैं. तो यहाँ पर ना असर्टिवनेस अगर है बच्चे के अंदर ना, तो ही कैन क्लियरली मेक हिज पॉइंट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, एंड दिस इज समथिंग आई वांट यू टू बी ट्रीट मी लाइक दिस ओनली. सो दिस कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should deliver this also. Agree. Yeah. Thank you for sharing. My next question to you is, like इस एज ग्रुप में टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं where they get heated up. Both of them are not understanding their point of views.
सो स्पेशली जो जनरेशन गैप है विच इज अ वेरी लाइक ट्रू फैक्ट जो हमेशा रहेगा. So how to actually deal with such topics जहाँ पर both of them are not understanding and they are, you know, like kind of heated things happen. So sometimes my son and I don't agree on things because we come from different times. So I believe that understanding each other with kindness and listening is very important. मतलब ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन ना एक कनेक्ट होना बहुत जरूरी है कि हम वहां पर एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी बारे में आर्गुमेंट नहीं कर रहे. तो मैं उसको एक तो फ्रीडम ऑफ स्पेस ये देती हूँ सबसे पहले, बात करने से पहले, कि होगा वही जो तुम चाहोगे, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं होगा इसके अंदर. इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू दी होल कंप्लीट पिक्चर. यू हैव टू चूज कि तुमको अपने लिए क्या चाहिए. मैं सिर्फ उसको एक वो विजन दिखा सकती हूँ कि अगर आप ये करते हो तो बेटा ये हो रहा है, अगर ये कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है. तो सिर्फ उसको ना वही डायरेक्ट किया, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि ये नहीं कर सकते हो और ये करोगे तुम. तो वो इंस्ट्रक्ट करना गलत होता है. बच्चे को सबसे पहले आप कूल डाउन कर दो एक बार कि वही होगा जो तुम चाह रहे हो. जस्ट लिसन मी, और मैं तुमको सुन के समझ रही हूँ, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर परसेप्शन ऑल्सो. तो वो एक फ्रीडम देना, वो एक कॉन्फिडेंस देना, ट्रस्ट देना उसको, उस समय पहले शांत करके ना तभी आप उसके साथ बात कर सकते हो. और सबसे इसका एक थंब रूल है कि जिस टाइम पर बच्चा हीटेड हो रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है आपके साथ, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा ना, दिस इज द ओनली टाइम यू नीड टू गिव योर टोटली अटेंशन, लव, उसको एक हग. वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जबकि रिवर्स होता है कि जब बच्चे चीख चिल्ला रहे होते हैं ना, तो हम भी साथ में वही कर रहे होते हैं एज ए पेरेंट्स, कि तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कैसे जवाब दे रहे हो, वॉच योर टोन. तो इन सबको ना पर्सनली पेरेंट को या मदर्स को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए. दे नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी लाइक टीन्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उस समय किस इमोशन से गुजर रहे हैं. बिकॉज इस एज के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो उनसे भी डील कर रहे हैं. और वो हार्मोन्स भी उनको ट्रिगर करते हैं, ये सारा कुछ मतलब इस तरह का बिहेवियर जब वो शो करते हैं. तो आपको इतना सेंसिबल होना चाहिए, इतना माइंडफुल होना चाहिए कि बच्चे ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, उसको पर्सनली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ मोमेंट, दैट्स इट. वो इंटेंशनली कभी भी आपको हर्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ना कभी करते हैं. एग्री विद यू कि इट्स नेवर इंटेंशनल. ये सब मतलब इट्स अ जनरेशनल गैप, इट विल बी नेचुरल, बट एट द सेम टाइम वी जस्ट नीड टू हैव दिस, you know, like feeling of understanding coming from a place of compassion. So amazing thing. Thank you for simplifying every point and question that I am asking. जो मेरा next question है, it's on connection. Like you know, हम सब लोग let's say family time we all have, but mostly क्या होता है कि even if it's a family time, all of us are on phones. हम अपने phones को ही देखते रहते हैं. Teenagers अपने phone में, parents अपने phone में. And I think कि it's not because of social media, it's because maybe that connection is not there among each family member. So इस चीज से how can actually parents and teenagers build a connection with each other ताकि वो phones को रखकर एक साथ भी time spend कर सकें. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, किसी की भी साथ कनेक्ट होना है ना आपको, तो आपको ना उसके इंटरेस्ट की बात करनी है उस टाइम पर, जो उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट. तो और नॉर्मली होता क्या है कि हम अपने बारे में बताना चाह रहे होते हैं, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आप क्या कहना चाहते हो. एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि आप क्या सुनना चाहते हो उनसे ना. तो उस समय आप बच्चे जो बताना चाहते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, आप उसको लाइक रखकर इनिशिएट कर सकते हैं कि तुम बताओ. अच्छा ठीक है, तुम, वो फोन में रहते हैं बच्चे, ठीक है, यू सेड कि फोन है, फोन को हम अभी दूर नहीं कर सकते. तो आज की भैया तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, बताओ अच्छा क्या चल रहा है. तो उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें करो, तो एटलीस्ट उस टाइम पर वो फोन में साइड रखकर आपसे बातें करेंगे. और जरूरी नहीं है हम बच्चों को हर समय ज्ञान दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. बच्चों का इंटरेस्ट जहां पर भी है, जितना भी है, उसके साथ आप उसमें से क्या प्रोडक्टिव निकाल सकते हो, उसी के थ्रू, उसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू. बिकॉज कोई भी बात ना बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं होती. सो वंस यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट फॉर एवरीथिंग नो, तो तुमको ये देखना है कि किस टॉपिक में बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ उसको अच्छा लग रहा है बात करना आपके साथ. अब आप अगर उस समय बैठकर उसको ज्ञान दोगे, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, फ्रेंड्स कैसे हैं, देखो नेल्स कटे नहीं है तुम्हारे, तो ये सब चीजें बच्चों को इरिटेट करती है.
तो बच्चों के इंटरेस्ट में शामिल होए और उनके साथ तभी आप एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं, जब बच्चे को समझ में आएगा कि दे एक्चुअली वैल्यू माय थिंग्स आल्सो, चाहे वो कुछ भी है, फिर चाहे वो सेंसलेस है चाहे वो सेंसिबल है, बट जस्ट बी विद देम, नो, एज पर देयर विश। जी। Awesome. So it's like कि जब भी पेरेंट्स एंड टीनेजर्स एक साथ बैठे हैं, दे शुड टॉक अबाउट समथिंग जो दोनों को इंटरेस्टिंग लगता है एंड नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक स्टडीज एंड एवरीथिंग. सो वन मोर क्वेश्चन. पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है फॉर द स्टडीज ऑफ their teenagers. Like कुछ teenagers, they are very active in their studies, they are able to handle on their own, but mostly पेरेंट्स को बोलना पड़ता है पढ़ाई के लिए, एंड टीनेजर्स को वो पोकिंग टाइप लगती है कि दे आर ऑलवेज आफ्टर मी आफ्टर स्टडीज. सो यू नो, इस सिचुएशन को कैसे मैच्योरली कैन पेरेंट्स डील सो दैट टीनेजर आल्सो अंडरस्टैंड्स कि इट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट ओनली? इसके लिए भी ना, कभी भी आपको किसी के साथ भी डील करना है ना, कनेक्शन इज द की एक्शन एंड द क्लियर वाई, कि हमें क्यों पढ़ना है. और कोई भी चीज जिसको आप बार बार बच्चों को बोलोगे ना, इट ऑलवेज लाइक इरिटेटिंग देम. तो कुछ आपको रूल्स बाउंड्रीज सेट करनी है अपने और बच्चे के बीच में, और उसमें ना आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना है कि चलो पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा बनाना है. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू सिट विद योर चाइल्ड एंड यू हैव टू डिस्कस विद हिम, और उसी के हिसाब से आपको वो टाइम टेबल बनाना है, उसका स्केड्यूल बनाना है. और बार बार टोकने के बजाय उसके साथ एक बार बैठिए और उसके साथ एज अ एडल्ट उसको ट्रीट करते हुए उसकी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए कि पढ़ते नहीं हो, पूरा टाइम फोन में रहते हो, टीवी देखते हो, क्लासेस नहीं जा रहे हो. ये सब कुछ तो हो ही रहा है. अब उसको बताने से कुछ होगा नहीं ना, जो लॉस होना था वो हो चुका है एक्चुअली. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन. और सोल्यूशन तभी हो सकता है कि जब ना आप उसके साथ एक, आई एम गिविंग यू वन फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज जब भी याद आया एकदम से, जैसे 3P फॉर्मूला. इसके अंदर क्या होता है, यू हैव टू, सबसे पहले परसेप्शन, बच्चे के हिसाब से उस चीजों को परसीव कीजिए, राइट. उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और फिर प्यार से जो भी आप चाहते हैं ना, आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही करेगा. बट यू हैव टू फॉलो दिस 3Ps. तो यहाँ से ना हम बहुत अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं. तो जब तक हम बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, आप उससे कोई भी काम करा ही नहीं सकते हो. आप गुस्सा होके वो सारी हार्मनी डिस्टर्ब कर दोगे. पर वो पहले भी नहीं रहा था, और आपकी गुस्सा करने के बाद, इरिटेट करने के बाद, कुछ डायलॉग्स को टॉन्ट करने के बाद तो वैसी सारी एनर्जी खराब हो गई है. अब तो जो कर रहा था वो भी नहीं करेगा. तो बेटर है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो करे कि जो हम उससे करवाना चाहते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव, तो आप ये 3P अप्लाई करें और उसको वो स्पेस दें काम करने का, और उसको मैच्योरली शांति से ही हैंडल कर सकते हैं. डांटने से, चीखने, चिल्लाने से, एनर्जी खराब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. Agree. Thank you for sharing the 3P formula. So it's perception. Second was like can you repeat? Patience. And third is प्यार से handle. Okay, प्यार, perception, patience and प्यार. Thank you so much for sharing. I'm sure कि हर एक parent, whoever is listening to this podcast, they are getting bulb on moments every time you are sharing. So amazing. My next question to you is like, you know, how does a parent deal with the situation when a teenager is going through their tough times in life? So how can they actually, what kind of mindset should they have? Should they support or should they let them experience their own things so that उनको खुद चल के आगे realize हो? There is a very thin line between making them independent और ignoring them. तो कितनी बार हम सोचते हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और उस चक्कर में ना हम उनको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, which is wrong. So when tough time happen, I teach my son that to be strong and we solve problems together. कि लाइक वो कैसा फील कर रहा है, और उसका जो किसी भी इंसान से उसको हार्ड टाइम से बाहर निकालना है ना, तो यू हैव टू हिट द राइट इमोशन एट द राइट टाइम. तो आप उसको वो एक बिगर विजन दो लाइफ के बारे में. वो जिस मोमेंट से डील कर रहा है वो उसको साइड में रखो कि बेटा ये तो हो ही जाएगा. इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग जहाँ पे तुम अभी परेशान हो रहे हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो ओवरकम हो ही जाएगी. इम्पोर्टेंट इज योर माइंडसेट. तुम चीजों को जब टफ टाइम आता है कैसे उसको हैंडल कर रहे हो. ये तो अभी इतनी छोटी लाइफ है, यू आर जस्ट 16 और 17, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लाइफ शुरू भी नहीं हुई है.
तो वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस, इतना डिमोटिवेटेड क्यों हो रहे हो चीजों को लेकर? ये तो बहुत छोटी चीज है, हम इससे साथ में बाहर निकल आएंगे। बट थिंक कि अभी लाइफ इतनी आगे है, अप्स एंड डाउन आएंगे, तो तब तुम उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर building your growth mindset to see the like harder side of the life. Life is not a bed of roses, right? तो कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, तो वो दिखाना है, और उस सिचुएशन का जो आफ्टर इफेक्ट है ना, वो दिखाना है कि हर एक प्रॉब्लम का ना एक शॉर्टकट होता है जिसको तुम ऐसे डील कर रहे हो, और एक लॉन्ग वे होता है जो कि हार्ड होता है. So you have to always go to the hard way, the long way. Only then you can have the success ultimately in your life, in your mind, in your heart. So this is my thing. Yeah. Great. So there's a very thin line between ignoring your teenager and actually supporting them and being them, like making them independent. You have rightly pointed out. Next is which I wanted to ask you is, to your own children, do you like what kind of parent you yourself perceive to be? Like आप parent ही रहते हो या फिर you are more like a friend to them? It's a very crucial balance. Like Yes. कब फ्रेंड होना है और कब पेरेंट होना है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. मैंने होता है ना, हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट है. Situation. तो यू हैव टू चूज वेरी वाइजली कि कब आपको फ्रेंड जोन में जाना है और कब पेरेंट जोन में जाना है. सिचुएशन वाइज आपको उसको एनालाइज करना है, और ये आपको ना नेटवर्क इज प्रॉपर, ठीक है, तो ये आपको ना डील करते करते समझ में आता है. बिकॉज एवरी पेरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, दे आर यूनिक. तो कोई पेरेंटिंग रूल नहीं होता है इसका कि आपको ऐसे करना है, अभी ये करना है. दिस इज योर एवरीबॉडीज ओन जर्नी. बट आपको वो सेंसिबल डिसीजन जरूर लेना होता है, कॉन्शियस डिसीजन, कि अभी मेरे को फ्रेंड बनना है और अभी मेरे को पेरेंट बनना है. Yes. Amazing. So it's like parents need to understand that when they need to get into the friend zone and when they actually need to take out their danda and like Yes, be there with danda their is child. very important. At times Yes. danda bhi is very important. It plays a very crucial role. Yes, great. So like my next question to you is, in the school life journey, teenagers are in their way of getting clarity कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है. So how should parents actually guide them कि they understand how can you get this kind of clarity in your life when they are totally confused? तो जब भी आप कंफ्यूज होते हो ना, तो आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए. वो कहाँ से आता है? यू हैव टू विजुअलाइज कि अल्टीमेटली जो भी हम डिसीजन बना रहे हैं, ले रहे हैं इस टाइम पर, वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा. हम क्या तो देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को आगे 5 साल में, 2 साल में हम कहाँ पर होंगे. सो यू हैव टू हैव प्रॉपर काइंड ऑफ एक्शन प्लान फॉर दैट. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन टेक लाइक प्रोफेशनल हेल्प. आप एक स्वॉट एनालिसिस होता है जहाँ पर हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को डिस्कस करते हैं. तो आप वो कर सकते हैं बैठकर. बट बच्चों के साथ रहिए और उनको वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि चीजें ना करके पता चलेंगी. बेटा, आप सोचो कि मैं आज डर जाऊं कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट. और जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, तो वो जर्नी अपने आप लाइक परफेक्ट होती जाती है. स्टार्टिंग में कोई चीज परफेक्ट दिखती नहीं है, होती नहीं है. जस्ट इल्यूजन की सब कुछ अच्छा हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है. परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता है. You have to actually bring out perfect moment in your life. तो उसके लिए ना you just have to be rational thinking. जब हम बच्चे को देते हैं ना, तो वो rationally चीजों को प्लान करता है, अपनी लाइफ को विजुअलाइज करता है, और उसके पर कुछ भी चीज ना, हमारा कहता है ना, एक there's a difference between dreamer and doers. तो सपने देख से कुछ नहीं होगा. मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए क्या कर रहे हो, you have to see that कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सारा स्टेज जो आप कर रहे हो, वो जो अल्टीमेट आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए ना कि मुझे ये बनना है लाइफ में, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाओगे अगर आप उस जर्नी पे, प्रोसेस पे फोकस करोगे, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे. Agree with you. My next question which I wanted to ask is कि I believe कि apart from the role that a parent plays, parents की अपनी भी एक life होती है apart from their children, apart from their family, which somewhere they fail to understand.
So, how do you actually create this balance between your personal, family, and professional time? Because all three needs to be there. The personal life of a parent is also important because जब तक वो खुद के साथ अपने साथ time spend नहीं करेंगे, when they themselves are not happy, तो वो अपनी family को कैसे happy रख सकते हैं? So true, Gargi and Nancy. This is a very, very insightful question. बहुत अच्छा पूछा बच्चे. Because I didn't expecting this much from you, but since you have all the wisdom, so you always never think the opportunity to surprise me. ये बहुत important है because जब आप पेरेंट होते हो ना, तो आपकी खुद की एक लाइफ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू डिलीवर दी बेस्ट ऑफ हार्मनी टू योर चिल्ड्रन. और बच्चों को भी ना ये टीम वर्क दिखना चाहिए कि मम्मी और पापा अलग अलग नहीं है. बहुत से घरों में ऐसा होता है कि मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, और बच्चा तो उस चीज का लिवरेज लेता है. तो यू हैव टू वर्क लाइक एज अ टीम ऑल्सो. एंड देन जो आपका रिलेशनशिप होता है ना, एक एज अ पेरेंट्स, और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की, तो यहाँ से जो आपका खुद का बॉन्ड है एक रिलेशनशिप का, यहाँ से भी ना हम बच्चों को ना एक टीचिंग ही दे रहे हैं कि दिस इज हाउ यू हैव टू बी इन द रिलेशनशिप. वो कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, लाइक क्वालिटी टाइम, हाउ यू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो जब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ होगी, अपनी रिलेशनशिप होंगी, तो उसको वहां से सारा का सारा वो विजडम मिल रहा है कि मेरे पापा कैसे मेरी मम्मी को ट्रीट करते हैं, मेरे मम्मी मेरे पापा के साथ कैसे रहती हैं. तो आपको एज अ कपल भी बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करनी होती हैं कि हम लाइक कपल लाइफ ऐसी होती है, तो सो दैट उनको भी वो चीजें वहीं से तो एक्सपीरियंस मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पेरेंट बन के ना रहें, उनके साथ एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ भी चीजें बच्चों के साथ होनी चाहिए. उनको ये परसेप्शन मिलना चाहिए कि इनकी ये वाली लाइफ भी है, एंड दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द स्पेस ऑल्सो. और उसमें कभी भी वो गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम बच्चों को छोड़कर आज एक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, एक डिनर पे चले गए. पेरेंट्स को ऐसा बहुत लगता है, बट नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर us also, for kids also, to understand कि उनका भी अपना एक स्पेस है, उनको वो स्पेस देना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है. हर समय सब लोग साथ नहीं हो सकते, राइट? Agree. Thank you for bringing up this point. Or, like one thing I also wanted to ask, a lot of parents are also, concerned about their teenagers' sleeping habits, over usage of social media, some kind of addictions अगर वो involve हो जाते हैं किसी चीज में. So मतलब इन सब चीजों को how can a parent handle, because you need to set some rules as a parent also for your child ताकि वो actually माने. Because what I have seen, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं लाइक दे आर नॉट ऑन देयर ओन वर्ड्स. अगर उन्होंने बोला है कि एट 6 PM इट्स योर स्टडी टाइम, एंड अगर आपने पढ़ा तो आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड. अब अगर सपोज द चाइल्ड कम्स टू देम एंड वो प्लीज प्लीज करके खेलने चला गया 6 PM, सो द पेरेंट इज नॉट ऑन देयर पनिशमेंट, उन्होंने भी भेज दिया. सो बाद में टीनेजर को यही लगेगा कि माय पेरेंट, अगर मैं प्लीज प्लीज बोल के मना ही लूंगा. सो हाउ टू एक्चुअली कोप अप विद दिस सिचुएशन? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत होता है घरों के अंदर, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं टेंट्रम शो करके ना अपनी बात मनवा लूंगा. तो यहाँ पर भी ना मैं यही बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि व्हाई यू आर सेइंग यस टू सर्टेन थिंग्स एंड व्हाई यू आर सेइंग नो टू सर्टेन थिंग्स. मतलब यू हैव टू चूज योर फाइट वेरी वाइजली विद योर चिल्ड्रन. कि ऐसे नहीं रैंडमली उसने कुछ भी पूछा तो ठीक है कर लो, नहीं मना कर दो और सिर्फ एक आंसर दे दिया यस और नो का. नहीं, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि बेटा अगर मैं यस कह रही हूँ तो मैं क्यों कह रही हूँ, अगर मैं नो कह रही हूँ तो मैं क्यों कह रही हूँ. और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उसके अगर आपको मान जाना है तो आप प्लीज एक ही बार में मान जाए. वो सिचुएशन ना आने दें कि वो वहां पर टेंट्रम शो करे, रो रहा है, फैल रहा है, अपसेट होकर दिखा रहा है, नाराज हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, फिर आप कह रहे हो ठीक है चलो चलो कर लो तो मुझे करना है. दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग. तो अगर आपको लगता है कि वो चीज इतनी कुछ क्रूशल नहीं है तो उसको पहली बार में अलाउ कर दीजिए. और अगर आपने उसको मना करा है तो फिर उसके टेंट्रम शो करने पर आपको नहीं मानना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू क्लियर इन योर माइंडसेट ऑल्सो. और दूसरी बात रही कि बच्चों का टाइम टेबल या डिसिप्लिन कैसे रूटीन फॉलो करें, सब कुछ करें, उसके लिए वही है कि जब भी हम कुछ चीज बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं ना, तो वहां पर बच्चों को बिठाना बहुत जरूरी है. उनसे ही पूछना कि हाउ दे वांट देयर थिंग्स.
तुम्हारे को अपना स्लीपिंग टाइम कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब खेलना है, कब पढ़ना है, ये बताओ। और लास्ट टाइम जब तुमने वो अपना रूटीन फॉलो नहीं करा था तो तुमने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे थे, क्या प्रॉब्लम आई थी, लास्ट मिनट रश हुआ था, इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो गई थी, तो आपको वो सब कुछ याद दिलाना है उनको और उसी के लिए एनकरेज करना है। और कितनी बार क्या होता है कि पेरेंट्स का खुद का रूटीन सेट नहीं होता है और बच्चे पेरेंट्स की वेट करने में, पापा आएंगे तब खाना खाएंगे, मम्मी आ जाएंगी तब सोएंगे। सो आपको ना अपना खुद का रूटीन भी पहले सेट करना है कि बेटा ये टाइम है, मैं आपको इस टाइम मिल सकती हूँ, इस टाइम नहीं मिल सकती हूँ, दिस इज माई दिस टाइम। तो वो एक फैमिली का खुद का ही डिस्कशन होना चाहिए कि सबका टाइम आपस में क्लैश ना करे, किसी का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज हर एक किसी के लिए ना अपना एक मी टाइम, अपना एक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर किसी को किसी के लिए वेट कराना या करना, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग इन द फैमिली, तो वो नहीं करना चाहिए। Oh, यू आर sorry. नॉट Yes. ऑडिबल। Great. Rightly pointed out. And one more thing which I wanted to ask is, आपका खुद का aura and energy is so positive and powerful. So how do you actually keep this, maintain this energy of yours while handling so many things at the same time? हाँ, बिकॉज गार्गी, आई ऑलवेज बिलीव कि जो चीजें एक अच्छी एनर्जी से हो सकती है ना, मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ मिस नहीं होएगा, अगर आप उसको ना एक बैलेंस माइंड से हैंडल करते हो। और कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ के अंदर जो कि दोबारा नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा, परेशान होके बैठ बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ना 2 मिनट अपने को काम डाउन करना है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है कि अब क्या कर सकते हैं। सपोज तो सब कुछ खराब हो गया उस समय पर, एक मोमेंट ऐसा आता है लाइफ में कि ये भी मिस हो गया, ये भी खराब, ये भी खराब, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है। तो यही तो विजडम है कि अब क्या कर सकते हो जब कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है और आपने तब सब कुछ बेस्ट निकाल लिया तो उसमें क्या है, आप सब कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, नो। तो इम्पोर्टेंट तब होता है, क्रूशल तब है जब सारी आपकी चीजें नेगेटिव जोन में है, आप वहां से प्लस लेकर आ रहे हो, ठीक है ना। और दूसरा कि आपको ना हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, जब आप दूसरे लोग, आप खुद से हैप्पी हो। एक्चुअली वो मैं खुद से हैप्पी कब रहती हूँ, जब मैं सामने वाले को समझती हूँ, सामने वाले का परसेप्शन समझती हूँ और उसके हिसाब से अपने को ढाल लेती हूँ। बट मैं अपने साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जो चीजें मुझे चाहिए अपने लिए मैं उनको सबसे ऊपर रखती हूँ। बिकॉज when I feel happy, like from inside, no, only then I can deliver the happiness to the other person. तो वो चीजें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. और So it's पॉजिटिविटी ऑफ like. लाइफ ना, हाँ, Hmm. मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट, और पॉजिटिविटी बोलने से नहीं आती है, एक्चुअली यू हैव टू फील इट। Hmm. जब तक वो फील नहीं करोगे और चीजों को लेके ना दिल बड़ा रखोगे अपना, तो वो हमेशा मिलेगा आपको। Yes, and one more thing, as a parent B, they go through a lot of challenges themselves. So apart from like parenting, they have their own, struggles, जो चीजें उनको परेशान करती हैं कभी कभी. So how to actually overcome this stage जब भी they are not able to understand how they need to balance their own mind. हाँ, मैं तो अपना बताती हूँ कि हाउ आई डील एक्चुअली। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अपना एक मी टाइम चाहिए, अ परफेक्ट वॉक विद माय एयरपॉड्स ऑन। और आई ऑलवेज जॉट डाउन माय थिंग्स, माय प्रायोरिटीज, मेरे को क्या क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे चीजें डिस्टर्ब क्या कर रही है, मुझे क्या तो अपनी लाइफ से बाहर करना है और किन चीजों को इंक्लूड करना है, सो दैट मैं अपना वो पीस ऑफ माइंड ले पाऊँ। और जैसे अभी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन, तो मुझे भी समझ में आया कि लाइक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव द मेंटल पीस। मुझे अपनी कॉलिंग पे काम करना है इस टाइम पर, ठीक है। लाइफ में कुछ मिसिंग नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था लाइफ के अंदर, एवरीथिंग इज वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई हैव अ ग्रेटिट्यूड फीलिंग फॉर दिस ऑल्सो। बट अभी मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है, तो मुझे उसके लिए काम करना था, तो मुझे उसके लिए लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है कि वो अब चीजें कैसे होंगी। आई जस्ट स्टार्टेड कि अभी बच्चे भी छोटे हैं, एक लाइक आई हैव अ डॉटर आल्सो, शी इज 10 ओनली, तो मुझे उसको मैनेज करना है, घर का हाउस होल्ड देखना है। सो यू हैव टू जस्ट जॉट डाउन और उसको कामली लिखिए आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्लान करनी है। प्लानिंग इज द की। आप जब भी चीजों को, लाइफ को प्लान करते हो, डे को प्लान करते हो, यू ऑलवेज हैव द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वो हमेशा आपको एक क्लियर विजन देते हैं हर एक चीज के लिए। Yes.
So thank you so much for being on the show, because आप जो भी शेयर कर रहे हो, it's just like a bulwark, and I'm sure कि many people are taking a lot of notes while they are listening to you. One last question which I wanted to ask is, any last message you would like to share to everyone over here? Yes, very much. And this is like something very important. बहुत सारे पेरेंट्स को ना आज भी लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर ना बहुत कुछ मिसिंग है अपना 100% देने के बाद। और हर पेरेंट की यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा ना कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो लाइफ में, हैप्पी हो, अपनी चीजें खुद से मैनेज कर पाए, अपने लिए डिसीजंस ले पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ बच्चे के साथ ना कनेक्ट होना है, उसको करेक्ट नहीं करना है। जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक 3P फॉर्मूला है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। कनेक्शन इज द की। जब भी आप बच्चे से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, कुछ चीखना चिल्लाना वो सब कुछ घर में सीन बंद हो जाएगा। एंड यू हैव टू फोकस कि बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है। राइट तो वो स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के साथ एक, जैसे हम डॉक्टर्स देते हैं ना 3 टाइम्स सिरप कफ का, तो एक आपका गोल्डन पीरियड है बॉन्डिंग टाइम बच्चे के साथ, वो जरूर दीजिए उसको। जब वो सुबह सोकर उठ रहा है, जब वो रात को सोने जा रहा है, और जब वो स्कूल से वापस आ रहा है, तो ये 3 टाइम 10 मिनट अपने, मतलब 30 मिनट्स हो गए 3 3 बार, ये आपको बहुत जरूरी अपने बच्चों के साथ देने हैं। तीसरा, बच्चों को ना सिखाने पे फोकस कीजिए, पढ़ाने पर नहीं। पढ़ाई वो भूल जाएंगे, लेकिन जो आप उनको सिखा देंगे ना वो लाइफ लॉन्ग रहेगा उनके साथ। तो ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हमारी लाइक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रांग बिल्डिंग। तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे जरूर फोकस कीजिए अपने बच्चों की। एंड मेंटेन देयर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। हम बहुत सारे बच्चों को लाइक बहुत सारी क्लासेस भेजते हैं अपने बच्चों को, जस्ट टू हैव दी कॉन्फिडेंस। एक अच्छा कन्विक्शन आएगा बोलने में, बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। वो कोई ग्रूमिंग क्लासेस हेल्प नहीं करेगी जब तक आप खुद अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं करेंगे। एंड बी अ रियलिस्टिक रोल मॉडल। बच्चों के साथ ना, बच्चे बड़े ट्रिकी हैं आजकल के। आप उनको ऐसी ज्ञान लेक्चर देंगे ना, हमने तो ये करा था और वो करा था अपने टाइम पे, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, उससे कुछ नहीं होएगा। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ एंड बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई जस्ट वांट टू गिव मैसेज टू लक्ष्य कि बेटा कोई भी किसी भी टाइम कुछ भी स्टार्ट कर सकता है। तो दिस इज जस्ट अ लाइक इंस्पिरेशन टू हिम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल, पेरेंट्स प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम देन योर मनी। आपको लगता है कि आप बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज दे देंगे, गैजेट्स ला देंगे, क्लासेस भेज देंगे, ट्यूशंस भेज देंगे, बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे, दिस विल नॉट हेल्प व्हेन, जब तक आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों में। तो इन्वेस्ट योर टाइम। Great message to everyone here, that invest your time, not your money, because हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका तभी किसी के भी साथ तभी बनेगा when you are actually spending quality time with them and not seeing the quantity. So just last thing, कि if someone wants to connect with you, so how can they, like all the social media links of yours is there in the description below, so everyone you can just follow it. But apart from it, like कोई workshop if you have, or maybe your way of connecting. Yes, see, I am located in Meerut, so I have a center in Meerut. So the people who can come, like want to see me in person, they can visit Meerut and they can come to my center, and they can DM me also on my Insta to just have the connection and have a chat, and they can WhatsApp me on my number, and call is always there. I'm just a call away. And जब भी मेरी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं तो I'll update my social media, तो आपको वहाँ से वर्कशॉप्स का अपडेट मिलेगा। मैं रेगुलरली ऑफलाइन ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस वर्कशॉप्स देती रहती हूँ, so we can get connected with them. और अभी भी like maybe कुछ ऑफलाइन वर्कशॉप्स हैं तो मेरठ के अंदर हैं, तो if anybody wants to join that workshop is coming on like 12th of Feb. We have a parenting workshop in Meerut, so soon I'll announce on my social media, so you are very much welcome if someone can comes to Meerut. Yes, amazing. So everyone, now your action step is first, जो भी आपको your bulb on moments, your key takeaways, do share it in the comment section.
follow her on every social media profile, because abhi I will not only call this a trailer, because she has a lot of things to share with you and we cannot do and cover it only in 1 hour or 45 minutes. So do follow her on everywhere regarding parenting and relationships. And third thing is, one thing I want to tell everyone over here is, knowing plus not implementing equals to not knowing. अगर आपने सुना और सुनकर भी कुछ एक्शन नहीं लिया, then you just wasted your time. So if you really want to do something and make a change, then यहाँ से 2 key takeaways लो, लेकिन दोनों पर अच्छे से काम करो. So thank you so Raji, much, Megha ma'am. I just want to note down this what you said, knowing everything and not doing. What you said, I just want to note down. Yes, knowing Yeah. plus Knowing, not implementing not implementing. Yes. equals to not knowing. Oh, great equation, Gargi. Thank you so much, Awesome. ma'am. Awesome. All right, See, so thank you so much, everyone, and thank you, Megha ma'am, for being on the show. it's a great chat with you, Gargi, and I'm so happy that I have got connected with you. Thank you so much.